خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششیں تیز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اچانک تہران پہنچ گئے۔ ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی نے استقبال کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ نے تنازع کے حل کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا اور امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ ملاقات میں سرحدی تجارت اور اشیاء کے تبادلے کو آسان بنانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں ممالک اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ انمول پنکی سے کون کون کوکین خریدتا رہا، گھیرا تنگ، منشیات کے 300 خریداروں کی نشاندہی۔ کراچی پولیس نے گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ کوکین کوئن سے 5 پولیس افسران اور اہلکاروں کے رابطوں کا انکشاف۔ 5 کراچی کے مختلف علاقوں میں تعینات۔ تفتیشی حکام کے مطابق منشیات ڈیلر کا موبائل فون فورنسک کے لیے بھجوا دیا گیا۔ آڈیو وائس نوٹ کا بھی فورنسک کروانے کا فیصلہ۔ ملزمہ کے خلاف اب تک 21 کیسز سامنے آئے۔ 6 بینک اکاؤنٹس کی اسکروٹنی جاری۔ آن لائن موبائل ایپ کے ذریعے آنے والی رقم کا تخمینہ اب تک نہیں لگایا جا سکا۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں چھاپے، 7 افراد زیر حراست۔ کوکین کوئن انمول پنکی کا 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمہ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی کے ڈیوٹی میجسٹریٹ سینٹرل نے ایس آئی یو میں درج مقدمے میں جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ ایس آئی یو نے ضلع وسطی سے پنکی کے رائڈر کو گرفتار کیا تھا۔ انمول اور پنکی مقدمے میں مفرور تھی۔ عدالت نے ریمانڈ سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا کہ ملزمہ نے پولیس تشدد کی شکایت کی۔ ملزمہ کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ ملزمہ کی خاتون میڈیکل آفیسر سے جانچ کرائی جائے۔ بغدادی تھانے میں درج قتل کا مقدمہ۔ انمول پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع۔ جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ملزمہ ملک بھر میں پھیلے منشیات کے نیٹ ورک چلا رہی ہے۔ جاں بحق شخص ملزمہ کے برانڈ کی منشیات کی وجہ سے جان سے گیا۔ عدالت نے کہا کہ ملزمہ کے خلاف درج مقدمے میں دفعات سنگین نوعیت کی ہیں۔ منصفانہ نتیجے تک پہنچنے کے لیے مزید تفتیش ضروری ہے۔ گارڈن، گزری، درخشاں اور سچل تھانوں میں درج 14 مقدمات میں پنکی کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ انمول پنکی کو 16 مقدمات میں مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، سب کو لے ڈوبیں گے۔ کوکین کوئن انمول پنکی نے ارادے بتا دیے۔ کراچی کی عدالت میں پیشی پر شور شرابہ۔ کہا مجھے لاہور سے گرفتار کر کے یہاں لائے اور جھوٹے مقدمات بنائے۔ ملزمہ نے عدالت میں بھی کہا اسے وین میں لاہور سے لے کر آئے۔ ملزمہ کے وکیل نے کہا انمول کو 22 دن سے مختلف مقامات پر لے کر جایا جا رہا ہے۔ پسند کی شادی کرنے پر پورے گاؤں کو سزا۔ دھل کے گاؤں غازی خان میں لڑکی والوں نے لڑکے کی برادری کے گھروں کو آگ لگا دی۔ چنا برادری کے سدرا نے بروڑو برادری کے محمد حسن سے پسند کی شادی کی۔ بروڑو برادری کے لوگ گھر خالی کر کے فرار ہو گئے۔ سینکڑوں مسلح افراد نے درجنوں گھروں کو نظر آتش کر دیا۔ گھریلو سامان جل کر راکھ۔ متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ نوبہاتا جوڑے کی اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل۔ کہا ہماری جان کو خطرہ ہے، ہم نے حیدرآباد کی عدالت میں پسند کی شادی کی۔ لڑکی نے کہا کم سن نہیں ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، گھر سے صرف ایک سوٹ میں نکلی، کوئی چیز نہیں اٹھائی۔ چنا برادری کے 32 افراد پر گھروں کو آگ لگانے کا مقدمہ درج۔ دہشت گردی کی دفعات شامل 5 افراد گرفتار۔ ایران کا صبر ہمیشہ برقرار نہیں رہے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محمد مخبر کا خلیجی ممالک کو پیغام۔ کہا کہ ایران نے برسوں ان ممالک کو برادر سمجھا، لیکن انہوں نے اپنی خود مختاری کو داؤ پر لگا کر زمین اور وسائل ایران اور فلسطین کے دشمنوں کے حوالے کر دی۔ حالیہ جنگ کے دوران سینڈ کام کے زیر استعمال اڈوں کے خلاف ایران نے اپنے رد عمل میں تحمل کا مظاہرہ کیا، تاہم یہ تحمل ہمیشہ جاری نہیں رہے گا۔ ایران آئندہ زیادہ سخت رد عمل دے سکتا ہے۔
मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा, ख़ित्ते के ममालिक को निशाना बनाने और धमकियों की मज़म्मत। अमारात की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। तमाम दिफ़ाई इक़दामात का मकसद अपनी खुद मुख्तारी, शहरियों और अहम तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ है। मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी ख़तरे या जारहाना इक़दाम का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरान ने आपने हॉर्मज़ में बहरी सरगर्मियों के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आपने हॉर्मज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रोड पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इस मैकेनिज़्म से ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ फ़ायदा उठाएंगे। मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खदमात की फ़ीस ली जाएगी और ये रास्ता नाम नेहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। ईरानी टीवी के मुताबिक यूरोपीय ममालिक आपने हॉर्मज़ से बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त लेने के लिए तेहरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ट्रंप को दौरा चीन के बाद ईरान से मुतल्लिक अहम फैसलों के लिए दबाव का सामना। ईरान पर नए हमलों का इम्कान। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ फिर से हमलों पर गौर कर रहे हैं। सिफारती कोशिशों से कोई बड़ी पेशरफ्त हासिल नहीं हो सकी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आपने हॉर्मज़ की सूरत हाल के बायस खत्ते में कशीदगी बरकरार है। फ़ज़ाई हमलों के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी जजीरा खारक समेत अहम तनसीबात पर कब्जे का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात मलिया मेट करने की भी तजवीज़। अमरीकी फ़ौजी हुकाम ने नई हिकमत अमली को पेचीदा मिशन करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा सकदार की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बाहमी और कसर उलझाती दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार को भी सराहा। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक ब्रिगमैन का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के नाम तारीफी खत। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉप्स का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए तशक्कुर और दायमी कदरदानी का इजहार। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉप्स के शरीक चेयरमैन अमरीकी कांग्रेस रुकन जैक ब्रिगमैन की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। आम मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर मशहूर हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देरपा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। इसराइल का गाज़ा के इलाके रमल में इमारत पर फ़ज़ाई हमला। हमास के सीनियर कमांडर अज़ुद्दीन अल हद्दाद अहलिया और बेटी समेत शहीद। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम ने भी तस्दीक कर दी। अज़ुद्दीन अल हद्दाद अल क़स्साम ब्रिगेड्स के सरबराह थे। उन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के मनसूबा साजों में शुमार किया जाता था। इसराइल लेबनान जंगबंदी में तोसी के बावजूद सेहूनी फोर्सेस के हमले। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। फ़ज़ाई हमले में 3 इमदादी कारकुनान जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह का इसराइली फ़ौजियों पर ड्रोन हमला। रूसी सदर 19 से 20 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। रूसी सदारती ऑफिस क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरान और यूक्रेन जंग समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूएई सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते फाल रखने पर इत्तेफाक। 28वें आईनी तरमीम के आसार नज़र नहीं आ रहे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कुछ इशूज़ ऐसे हैं जिन पर इत्तिफ़ाक़ राय ज़रूरी है। पहले पार्लियामेंट में मौजूद अपने इत्तेहादियों से मशावरत करेंगे। हम मखलूत हुकूमत में हैं, आम कानून साजी मशावरत के बगैर नहीं करते तो आईनी तरमीम कैसे मशावरत के बगैर कर सकते हैं। सारे स्टेक होल्डर्स मिल कर बैठेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वफ़द के हमरा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गईं। बाकू पहुँचने पर पुरतबाक खान मकदम मरीम नवाज आज आज़री सदर अल्हाम उलियूफ से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मरीम नवाज बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब करेंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में पंजाब का मुनफरिद मॉडल अपनी छत अपना घर वर्ल्ड अर्बन फोरम में पेश किया जाएगा। मालियाती कवायद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर को बड़ा धचका। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने PTI आज़ाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन रूल 121 पर अमल दरामद न होने पर दरख्वास्त मुस्तरद की गई। ऑडिट रिपोर्ट में मालियाती बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान को ज़ाती समात का मौका दिया गया। दोबारा ऑडिट के बावजूद एतराज़ात बरकरार रहे। कानूनी तकाज़े पूरे न करने पर रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मंजूर न हो सकी। सिंध, KP और बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी। कराची समेत सिंध भर की दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रिलीफ मिल गया। फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्केट्स को भी इस्तिस्ना दे दिया गया। KP में दुकानों, कारोबारी मराकज़ और होटल्स को पाबंदी से इस्तिस्ना दे दिया गया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने भी 1 जून तक लॉकडाउन में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में भी कारोबारी मराकज़ को 1 जून तक रिलीफ मिल गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। MEOC के मुताबिक KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 19 से 22 मई के दौरान बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में भी बारिश का इम्कान।